Unacademy. Let's crack it. Very good morning to all of you. I hope I'm audible and visible. Hi Pulkit, very good morning to you. कैसे हैं आप? Hi Jyotika, good to see you too. Pulkit and hi Jyotika. Bittu, I hope you're doing fine. I'm fine Bittu, आप कैसे हैं? Punita, good morning. Yukti, good morning. Asta, Bittu, Mukul, very good morning to you. No, Pulkit, I did not get the time to see that, but okay, let it be, let it come out as a legislation, I think. Then I will. But sorry, I totally skipped my mind as well. Yeah. Harsha, very good morning to you. Kiran, morning. Mukul, morning. कैसे हो? No, nothing as such. You tell me. Hi, Neha. Oh, that's great. Hi, Akash. Very good morning to you. That's nice. All right. So we'll just wait another minute and then we can start off the session. People are still joining in. Laughing is a good exercise. Okay. All right. Yeah, I think yoga तो सबको ही पसंद है, but करना is a thing, है ना? All right, let's start with the topic which we were supposed to take up today. Let's see this. I think next slide नहीं, we have to start with this only. Pulkit. ठीक है. Not this slide discussion. This class has been scheduled to discuss this. All right. Before I start off the session, just give me 1 minute. I would like to switch to the another network. Okay, this is, yeah, the screen is not right for me, so just give me 1 minute, okay? Yeah, please.
All right, I hope I'm back. Let's see this. Okay, fine. Now, let's start with the topic. Good morning, Sayam. And as you know, POXO जो है वो already हमने complete कर लिया है. But there were few provisions in the end which were left in the previous session. आज हम थोड़ा सा वही complete कर लेते हैं. Let's just quickly complete these in 10 minutes. And उसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, that मैं आपको थोड़ा सा procedure JJ Act का और POXO का बता दूंगी that how actually basically inquiry before the juvenile justice board in case a person is a juvenile, उससे पहले जो है वो किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. ठीक है, सो आई थिंक पॉक्सो पहले कर लेते हैं, ये सेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं. एंड जस्ट लेट मी नो दैट आई थिंक मैंने मिसलेनियस प्रोविजन से पहले लास्ट टाइम फिनिश कर दिया था पॉक्सो सेक्शन 38. थैंक यू ज्योतिका, हाय निष्ठा. ठीक है, ठीक है. तो मिसलेनियस प्रोविजंस में थोड़ी सी आपको मार्क करवा रही हूँ. ठीक है, ये आप मार्क कर लीजिए. दीज आर ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सबसे पहले है सेक्शन 40. This could be important from free point of view. This is the right of the child to take assistance of a legal practitioner. So this is subject to the proviso to 301 CRPC. The family or the guardian of the child shall be entitled to the assistance of the legal counsel of their choice for any offence under this Act. Provided if the family or the guardian of the child are unable to afford a legal counsel, then definitely the state legal services authority is to provide a lawyer to them. So this is basically the concept of a free legal aid. Important रहेगा सेक्शन नंबर, ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 41. अगेन प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कौन से द रेंज ऑफ द सेक्शन स्कीम अप्लाई नहीं करेंगी इन सर्टन केसेस. The provisions of section 3 to 13, both inclusive, shall not apply in the case of medical examination or the medical treatment of the child, when such medical examination or treatment is undertaken with the consent of his parents or guardian. सारे प्री के लिए इम्पोर्टेंट मार्क कर लो बस, और इसमें से मेंस क्वेश्चन नहीं आने वाला. 42 ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है. एज इन फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन एक पर्सन के अगेंस्ट, विक्टिम के अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है विच इज एन ऑफेंस अंडर पॉक्सो एज वेल एंड दैट इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी एज वेल, तो आप दोनों लॉज की जो है प्रोविजंस यूज करके उसके अगेंस्ट चार्जेस लेवी कर सकते हैं. बट इन दी एंड जब कन्विक्शन होगी तो जिसकी पनिशमेंट ज़्यादा है वो आपको जो है वो पनिश करना है उसके अकॉर्डिंग. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सेक्शन 42, बट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन नंबर. नेक्स्ट इज सेक्शन 42A. ये भी हमने सेक्शन जो है वो काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है. दैट पॉक्सो जो है, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट इन डेरोगेशन टू एनी अदर लॉ, बट क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, दिस इज गोइंग टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट. 42A इम्पॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड 42A की जो इंसर्शन डेट है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया है, दैट टू इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो 42A आप मार्क कर लीजिए. सो दिस हैज बीन with retrospective effect, this has been added on 3rd February 2018. तो आप प्लीज ये मार्क कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट इज monitoring, public awareness, power to make the rules, remove difficulties. These are just the general sections. You may go through these ones, but not that important. सिर्फ आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पढ़ सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, पॉक्सो के अंदर हमने एक बार ये सारा कर लिया है जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे. ठीक है, एंड किसी को पॉक्सो के प्रोविजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता दें, अदरवाइज आई कैन स्टार्ट ऑफ with the procedure which is followed under JJ Act. What we are trying to do today is एक general discussion है, इतना ज़्यादा important नहीं है from मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, बट द जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड. हाँ जी, सो शुड आई स्टार्ट विद द प्रोसीजर एवरीवन? करें स्टार्ट? ओके, ये सेम 2013, दिस इज 3rd February 2013.
सॉरी 2013 ही है, मैंने गलती से लिख दिया 2018, आई एम सो सॉरी। यस, दिस इज 2013। लेट मी चेक वंस, मैंने गलत लिखा है। Thirteen only, not 18. This is 13 with retrospective effect. 38 for pre. 38 for pre. Let me see. And the ma'am, for pre we have to check with effect. With effect only, Harsha. Yes, Sayam. 38. Yeah, only for pre point of view, Sayam. इसके ऊपर कोई भी मेंस क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता, only from pre. It is given in the Ware Act only. ठीक है, just a minute. It is given in the Ware Act. It's given in my Ware Act actually. So, हाँ जी. I am just checking one more time. Just give me 1 minute. Okay. उसमें नहीं लिखा, अच्छा ठीक है, नहीं, it's given in the Ware Act. Somebody else also can please. ठीक है. Section 39, Section 39, ये only for pre. श्वेता, जो मैं स्पेशली आपको ऐसे मार्क नहीं करवा रही हूँ, you can just go through these ones. ठीक है, एक बार, but only for pre. इतने ज़्यादा प्री के लिए भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। जो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ प्री के लिए, दैट मीन्स दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, आपके भी नहीं लिखा हुआ, एक्चुअली दिस इज गिवन इन माय वेयर एक्ट। आई विल जस्ट चेक, ओके देन। या शायद मेरे में गलत ना हो सकता है। लिखा हुआ है नॉट रिटन, चलो आई विल डेफिनेटली चेक। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स फाइन, वी कैन चेक। एक्चुअली इन्होंने ना सही से मेंशन नहीं किया हुआ है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो, आई विल जस्ट चेक ऑन दिस, डोंट वरी। Right. So let's see here. Fine. We were discussing. अच्छा चलो ठीक है रेट्रोस्पेक्टिव, सो इट्स फाइन, इट्स रेट्रोस्पेक्टिव। कंफ्यूजन होगी सुबह सुबह, चलो ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव। ओके, now let's see further. So as I told you, we will be discussing the एक तरीके से procedural part. Okay, so suppose there is one person A, he has committed any of the 3 offences which are given under POCSO, and this person is an adult. तो क्या आप एक नॉर्मल CRPC का प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे, दैट हाउ द FIR इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा एक विक्टिम है। ठीक है, पॉक्सो के अंदर हमारा विक्टिम जो है वो चाइल्ड है, एंड डेफिनेटली हम जो ट्रायल अपना प्रोसीजर रखेंगे वो चाइल्ड फ्रेंडली होगा। बट एज सच कोई इस एक्यूज्ड को, जो एक एडल्ट है, उसको तो कोई चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फॉलो अ नॉर्मल प्रोसीजर। FIR रजिस्टर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक, but suppose the things change when this person who has committed an offense under POCSO या किसी भी एक्ट के अंदर उसने offense किया है, वो person juvenile है, that is a person is under 18, so a child in conflict with law। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है वो प्रोसीजर चेंज होता है।
Now suppose there is a person who is under 18 and he has committed an offense, whether it's like you can say कहीं पे भी उसने कोई भी offense किया है. तो as you know that we have categorization of offenses under JJ Act. अगर आपको याद होगा categorization of offenses है JJ Act के अंदर as in petty offense, we have serious offenses and then we have heinous offenses. तो जो petty and serious offenses हैं यहाँ पे FIR रजिस्टर नहीं होती है. तो आपको पता है petty offenses कौन से होते हैं, serious offenses कौन से होते हैं, राइट? उन पनिशमेंट्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो ऑफेंस पॉक्सो के अंदर है, चाहे वो ऑफेंस IPC किसी भी लॉ के अंदर है, अगर उस पेटी या सीरियस ऑफेंस किया है तो उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर नहीं होती है. सो देयर इज नो FIR. बाय चांस अगर पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई है तो द पुलिस इज गोइंग टू रजिस्टर इट इन अ जनरल डेली डायरी. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है. और बाय चांस इफ इट्स द केस ऑफ अ हीनस ऑफेंस हम समझते हैं, अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द JJ एक्ट. ठीक, राइट. तो मिनिमम वहां पे जो है वो आपका 7 होना चाहिए, बट देयर इज नो लिमिट एज टू द मैक्सिमम. उस केस के अंदर हम FIR रजिस्टर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर होती है FIR. यहाँ किन केसेस के अंदर हम FIR रजिस्टर करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे एक्यूज जो हैं वो 4-5 हैं, ठीक है, और वन ऑफ देम इज अ जुवेनाइल एंड एडल्ट्स के साथ जो है वो उसने एक हीनस ऑफेंस किया है, तब भी उसके अगेंस्ट जो है वो FIR रजिस्टर होती है. सो दीज आर द इंस्टेंसेस. बट अगर हम पेटी ऑफेंस या सीरियस ऑफेंस की बात करते हैं तो हम फिर FIR रजिस्टर नहीं करते हैं. वी जस्ट रिकॉर्ड एक तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन इन द जनरल डेली डायरी. क्योंकि यहाँ पे जुवेनाइल है तो यहाँ पे एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होता है. आई थिंक हमने ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आपने ये वर्ड सुना होगा, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट. सो बेसिकली यू नो दिस इज द अथॉरिटी जो ये सारा जो है वो रिकॉर्ड करती है इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर हीनस ऑफेंस है तो FIR रजिस्टर करती है, अगर हीनस ऑफेंस नहीं है तो जनरल डेली डायरी. ठीक, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन अपनी रजिस्टर कर लेते हैं, इनका सबसे पहला काम क्या होता है, क्योंकि द पर्सन इज अ जुवेनाइल दैट इज अंडर 18. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान देना है दैट इट इज नॉट जस्ट द ट्रायल, सॉरी आई विल यूज द वर्ड इंक्वायरी. क्योंकि ये पर्सन जुवेनाइल है तो ये हमें बहुत ध्यान देना है कि सिर्फ इसको ऐसा नहीं है कि जब ये बोर्ड के आगे जाएगा तभी उसको जो है वो हम एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अडॉप्ट करेंगे. सो दिस अप्रोच इज टू बी अडॉप्टेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, तो आपको जो है वो बहुत थोड़ी कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है. नाउ कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास आई है, उन्होंने FIR रजिस्टर किया है या उन्होंने जनरल डेली डायरी के अंदर जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग की है, बेसिकली इनका एक काम होता है दैट इज दे विल हैव टू इन्फॉर्म JJ बोर्ड. ठीक है, अगर तो ये पेटी ऑफेंस है या ये सीरियस ऑफेंस है तो देयर इज नो पावर टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट टू एप्रीहेंड, नो पावर टू एप्रीहेंड. ठीक है, बस हमें मैटर रिपोर्ट करना है टू द बोर्ड. ठीक, जैसे ही हमने बोर्ड में मैटर रिपोर्ट कर दिया, बोर्ड जो है वो आपको इंटीमेट करेगा द डेट ऑफ हियरिंग, द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जिसको हम फर्स्ट समरी इंक्वायरी बोलते हैं. और ये जो डेट ऑफ हियरिंग होगी ये इंटीमेट कर दी जाएगी टू चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की फैमिली को, कोई गार्जियन है या पेरेंट्स है. सो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, हम उनको डेट इंटीमेट कर देते हैं कि इस दिन you are required to produce this child in conflict with law before the board. ठीक है, ये एक सिंपल सी बात यहाँ पे खत्म होती है, बिकॉज वी कैन नॉट एप्रीहेंड. पेटी एंड सीरियस ऑफेंसेस के अंदर सिर्फ हमने एक एंट्री डाली है और अपने एप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं, एंड देन वी आर रिपोर्टिंग द मैटर टू द बोर्ड. ठीक,
स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का एक और काम होता है, इंटीमेशन तो हमने बोर्ड को कर दी, बट इनको अपनी जो है वो एक रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है जिसको वी कैन सिंपली यूज द वर्ड एज फाइनल रिपोर्ट। इसके अंदर इनका एक और काम होता है कि इन्होंने एक सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार करनी है। यस, नहीं वो मैं दूसरी बात भी बताती हूँ आपको, बल्कि दिस इज सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट जो है ये साथ में तैयार करके देते हैं। सो बेसिकली सोशल जो आपकी बैकग्राउंड रिपोर्ट होती है, दिस हेल्प्स द बोर्ड कि जब वो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर ये देख सके कि क्या कोई भी प्रोसीडिंग्स आगे कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है या नहीं, कि या जो इंफॉर्मेशन ये जो आई है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट, this is unfounded, this is not based on some kind of any substantial piece of information। तो उसी टाइम जो है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर भी जो है वो हम इसको यू कैन से फटाफट जो है वो प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, आगे उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट में बेसिकली व्हाट द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करती है अबाउट द पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन आई थी दैट दिस इज द पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, एंड ये बैकग्राउंड है उसकी, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर दिस पर्सन बिलोंग्स, राइट, एंड इस हालात के अंदर उसने ये ऑफेंस किया है। सो बेसिकली सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट के अंदर काफ़ी हद तक उस ऑफेंस के बारे में रिपोर्ट होती है, दैट हाउ एक्चुअली यू नो कैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी एंड हाउ ही हैज एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है। हाय महेश। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बोर्ड डिसाइड करता है, ठीक। सो दिस इज काइंड ऑफ अ फाइनल रिपोर्ट, ये एक तरीके से फाइनल रिपोर्ट जाती है, ठीक है। And this final report is usually, this is being sent to the board within the period of 2 months। 2 months के अंदर अंदर वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। When 2 months from the date when child in conflict with law is जब उससे हमें पहली बार इंफॉर्मेशन उससे मिली है, तो जल्दी ये प्रोसीडिंग्स को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो स्पेशल आपका बैकग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके जल्दी विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स वी सबमिटेड टू दी बोर्ड, एंड बोर्ड फिर जो देखती हो कि हाउ टू प्रोसीड, कोई प्रोसीडिंग्स करने की ज़रूरत है या कोई भी प्रोसीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये सारी बातें जो है वो हम यू कैन से एक तरीके से बोर्ड को बता देते हैं, एंड देन द बोर्ड टेक्स द फाइनल डिसीजन, ठीक, राइट। फ्रॉम द डेट जब हमें पहली बार इंफॉर्मेशन आई है क्योंकि दिस इज द चाइल्ड हु हैज committed any kind of offense and that is a petty offense or a serious offense, ठीक हो गया। हाँ जी, yes, definitely Pulkit, this is something different, okay, I'm coming to that। social investigation report by a probation officer भी आती है, वो भी डायरेक्शन आती है from the board, ठीक है। this is just a minute ज्योतिका, let me tell you one thing, यहाँ से आपको कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है पुलकित, क्योंकि आपने FIR रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। आपने क्या किया है, एक एंट्री डाली थी डेली डायरी में, ठीक है। उसकी इंटीमेशन तो आपने जो है, एंड यू कांट एप्रीहेंड, यहाँ पे आप एप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं, वाई, बिकॉज दिस इज अ पेटी ऑफेंस एंड अ सीरियस ऑफेंस, बट फिर भी आप अपनी एक रिपोर्ट तो तैयार करके देंगे ना बोर्ड को। दिस इज दैट रिपोर्ट, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आप साथ में फाइल करना चाहते हैं ये आप सब जो हैं वो फाइल कर सकते हैं बिफोर द बोर्ड, एंड देन द बोर्ड टेक्स ओवर, बोर्ड डिसाइड कि कोई बात में दम है भी या नहीं है, एंड देन इट डिस्चार्जेस। बाई चांस बोर्ड को लगता है कि नहीं, हमें एक प्रोबेशन ऑफिसर से जो है यू कैन से एक तरीके से सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। अब आपको मैंने सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर पूरा एक डिटेल नोट लिखवाया हुआ है। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज एक्चुअली बहुत डीप में ये जाती है, प्रोबेशन ऑफिसर इसको कंडक्ट करता है, ठीक है, कि कौन से स्कूल में है बच्चा, उसके वहाँ पे कोई भी उसने पास्ट कंडक्ट कभी भी ऐसा किया, कोई इसके अगेंस्ट जो है वो रिपोर्ट आई या नहीं, तो ये बोर्ड डायरेक्ट करती है एक्चुअली। जब बोर्ड को लगता है दैट
देयर इज अ नीड टू प्रोसीड फर्दर। अब ठीक हुआ, पहले तो हम सिर्फ एक इनिशियल फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर रहे हैं, एंड देन द बोर्ड इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन दैट वेदर देयर इज अ नीड टू प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग्स, कोई केस इसके अगेंस्ट बनता भी है या नहीं। Once the board decides, and then it can direct the probation officer कि ठीक है, you make your social investigation report, because social investigation report जो है वो हमें बहुत हेल्प करने वाली है आगे। We can decide कि इसको bail grant करनी है कि नहीं करनी है। Are you able to get the point? So social investigation report is your detailed thing, अब आपकी background की actually कि आप कहाँ से आते हैं और आपकी एसोसिएशन किन लोगों के साथ है, राइट, पास्ट में आपका कॉन्डक्ट कैसा रहा है, बेसिकली दैट। जो आपका सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, दिस इज समथिंग दैट इज डीलिंग विद द ऑफेंस इटसेल्फ, कि हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई है इन एंड आपने ऐसे एक ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, राइट। ठीक है, सो बेसिकली यस, बोर्ड को एक तरीके से आउटलाइन देने के लिए, राइट, एक तरीके से ये बताने के लिए कि ये इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन आई है एंड वी थिंक दैट इट इज वेल फाउंडेड एंड देयर आर ऑल द रीजंस टू प्रोसीड अगेंस्ट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। फर्दर द बोर्ड may direct social investigation report by a probation officer, because social investigation report आपको बहुत हेल्प करने वाली है। You may decide that whether the person is to be given the bail or not. You may decide कि यहाँ पे इसके अगेंस्ट सेंटेंस कैसा होगा, ये भी आप एक तरीके से सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चल के देख सकते हैं कि दैट व्हाट हैज बीन द पास्ट कंडक्ट ऑफ दिस पर्सन। सो दिस रियली हेल्प्स द बोर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेज। हाँ जी, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, डन, ओके, ठीक हो गया। वी विल, आई विल मेक यू मार्क द प्रोविजंस, ये रूल के अंदर सारी प्रोविजंस हैं, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, सो वी आर डन विद दिस। हाँ जी ज्योतिका, आई एम सो सॉरी if I missed your doubt. Yes, ma'am, in case 2 adult accused and 1 juvenile and 1 serious offense committed, so अभी FIR होगी। No, ज्योतिका, okay, I'll make you mark ज्योतिका, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक। हीनस ऑफेंस के केस में FIR होती है, ठीक है। हीनस ऑफेंस फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ किया है CCL ने तब होगी, या हीनस ऑफेंस किया है 4-5 एडल्ट्स ने, उसमें से एक जो है दैट इज CCL। बट अगर सीरियस ऑफेंस किया था एडल्ट्स ने, उस 4-5 एडल्ट्स ने, उसमें से अगर 1 CCL है, देन देयर विल बी नो FIR अगेंस्ट हिम। बाकियों के अगेंस्ट तो होगी, बट इसका नाम जो है वो नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो है वो डेली रिपोर्ट के अंदर एंट्री करनी होगी। ठीक है ज्योतिका? हाँ जी, हीनस ऑफेंस के केस में सिंगली कमिट किया है या अलोंग विद द एसोसिएशन ऑफ द अदर्स, एडल्ट्स हैं वो सारे। ओके, हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सॉर्टेड है, एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। ठीक, okay, this is just the approach, Pulkit, just the reasoning is the approach that we don't want the FIR thing to happen here, and we are only right, just the approach. And moreover, you know, you can see Pulkit, we have section 18, section 18 ही है ना, and then आपका जो ट्रायल है बिफोर द चिल्ड्रंस कोर्ट, वो कौन से ऑफेंसेस के अंदर हो सकता है? ओनली इन हीनस ऑफेंसेस, ठीक है, हीनस ऑफेंसेस के अंदर ही हो सकता है, ठीक। बट सेक्शन 18 के अंदर पेटी ऑफेंस हो, सीरियस ऑफेंस हो, या इवन दो इट वाज हीनस ऑफेंस, बट इफ इट इज नॉट बीइंग ट्राइड बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट, तो सबकी जो पनिशमेंट है वो एक जैसी ही है, कोई फर्क नहीं है। यू कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच एज वेल ना। तो आपका पेटी ऑफेंस, आपका सीरियस ऑफेंस जो है, या आपने हीनस ऑफेंस किया है, अगर ये सबकी इंक्वायरी बोर्ड ने ही कंडक्ट की है, तो आप सेक्शन 18 से ही अंदाजा लगा सकते हैं that what kind of approach they are following. They are following a very lenient approach. It is always in the case of the heinous offense कि एक चांस है, and that too अगर आपने 16 years of age कंप्लीट कर लिए हैं, तो तभी ही एक अपॉर्चुनिटी है कि बोर्ड कह दे कि ठीक है, इसको हम चिल्ड्रंस कोर्ट के अंदर जो है वो इसका ट्रायल होगा। Is this clear? So petty and serious offences को तो जो है वो हम किसी भी तरीके से सेपरेट कर ही नहीं रहे हैं, दोनों के केसेस में डेली डायरी ही चलती है। हीनस के केस में FIR हो सकती है, ठीक है।
No, we can't say that. Okay, it's just that we have to follow the special procedure. We are not that. ठीक है? No, it's just that JJ provides for a special procedure. The rules under JJ Act provides for the special procedure. We have to follow that procedure. ठीक है? All right. Before I proceed further, no, we can't say that. ठीक है? हाँ जी, everyone clear? So shall I proceed further to the heinous offences? ठीक है? Okay. तो petty and serious यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ. Only daily report, daily diary report, then report final to the board. ये रिपोर्ट जो है वो आपको बता दी जाएगी to the board in the span of 2 months के अंदर अंदर from the date जब हमें पहली बार information मिली थी with respect to that CCL. तो फिर बोर्ड डिसाइड करता है आगे how to proceed further. ठीक हो गया? बाय चांस आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है दैट इन्वॉल्व्स अ हीनस ऑफेंस, आपने इंडिविजुअली हीनस ऑफेंस किया है CCL ने, या आपने ऑफ किया है along with other adults. ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी व्हाट इज द प्रोसीजर हियर ऑल्सो, आपको यहाँ पे FIR रजिस्टर होगी आपके अगेंस्ट. ठीक है? बट ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे भी आपकी जो है वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ही इन्वॉल्व रहती है. ठीक? तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो है वही FIR वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करेगी. एंड देन इन सिचुएशंस के अंदर देयर इज अ पावर टू एप्रीहेंड. ठीक है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एप्रीहेंड? मतलब उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, बट ऐसे वर्ड्स हम नहीं यूज करते हैं यहाँ पे JJ एक्ट के अंदर. सो दैट इज व्हाई थोड़ा सा ऐसी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं विच इज चाइल्ड फ्रेंडली. ठीक है? यहाँ पे दे कैन एप्रीहेंड. तो सपोज उन्होंने एप्रीहेंड कर लिया, तो देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट यू विल हैव टू प्रोड्यूस CCL within 24 hours before the board. ठीक है? तो हम फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द बोर्ड. ये सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है? तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ने एप्रीहेंड कर लिया उसको, प्रोडक्शन होगी उसकी बिफोर द बोर्ड. अब सपोज जैसे ही आपने उसको बोर्ड के आगे लॉकअप में रख सकते हैं, कुछ चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है. कैन द पर्सन बी हेल्ड इन अ लॉकअप? हमने कहा था नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है विद इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स, तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ये ध्यान रखी कि उसको मेडिकल फैसिलिटी मिले वहाँ पे. किसी भी अगर लगता है कि एप्रीहेंड कर लिया है बट हमें लॉकअप में तो उसको रखना नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग उसको किसी केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर भेज सकते हैं. यस, जो भी जैसे भी उनको सही लगता है, दैट दिस इज फॉर द वेलफेयर. यस, ऑब्जर्वेशन होम के अंदर उसको भेज सकते हैं, बट दैट ओनली टिल, मतलब फॉर द टाइमिंग 24 आवर्स वाला टाइम जो है वो हमें भूलना नहीं है. वो तो हमें बोर्ड के आगे उसको प्रोड्यूस करना ही करना है फॉर द टाइमिंग. राइट? लॉकअप में तो उसको बंद करना ही नहीं है कभी भी. स्पेशल जुवेनाइल पुलिस जब एप्रीहेंड करेगी, जब अरेस्ट करेगी, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी इन यूनिफॉर्म. नॉट इन यूनिफॉर्म, दे शुड बी इन प्लेन क्लोथ्स. ठीक है? ऐसा लगना चाहिए कि मॉल में लेके जा रहे हैं CCL को. ठीक है? सो चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच. फिर उसको प्रोड्यूस करना है हमने बोर्ड के आगे. नाउ बोर्ड जो है दिस इज गोइंग टू मेक अ डिसीजन. ठीक? अगर सपोज हमें लगता है कि इसको रिलीज करना है तो ठीक है, रिलीज कर सकते हैं. ठीक है? या अगर उसको लगता है बोर्ड को कि नहीं, द पर्सन नीड्स टू बी सेंट टू दी ऑब्जर्वेशन होम. क्योंकि आपको मैंने जब ऑब्जर्वेशन होम की प्रोविजंस मार्क करवाई थी तो उसके अंदर बताया था कि ऑब्जर्वेशन होम के अंदर ड्यूरिंग दी पेंडेंसी भेजते हैं. ठीक है? CCL को, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसके अगेंस्ट पेंडिंग होती हैं प्रोसीडिंग्स, उनको हम ऑब्जर्वेशन होम में भेजते हैं. तो बोर्ड फिर जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है दैट दिस पर्सन इज टू बी केप्ट इन द ऑब्जर्वेशन होम. राइट? बट ऐसा भी हो सकता है कि उसको लगे कि चलो ऑब्जर्वेशन होम तो बाद में कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट दिस पर्सन इज वन हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन. ये भी हो सकता है. एंड दिस अप्लाइज इन द केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस एंड सीरियस ऑफेंसेस आल्सो. वहाँ पे भी जब भी आप प्रोड्यूस करते हैं बिफोर द बोर्ड, तो आपको लग सकता है बोर्ड को कि दैट दिस इज अ पर्सन हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन. तो फिर हम फर्दर फॉरवर्ड कर देते हैं टू दी CWC.
फिर दैट CWC मेक्स अ डिसीजन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लाइक व्हाट इज द थिंग, जब आपको पहली बार प्रोड्यूस कर दिया गया बिफोर द बोर्ड, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये हीनस ऑफेंस है तो आपको जल्दी करना होगा, 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपको रिपोर्ट देनी होती है। बट द डेट इज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम डेट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर बोर्ड। जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उसको 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी होती है। तो जब भी हम बात करते हैं फाइनल रिपोर्ट की, तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, कोई भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप कोई ना कोई गिल्ट प्रूफ करना चाहते हैं उसकी, ठीक है, वो आ जाएंगी सारी। किसी ना किसी को कोई अगर अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी थी तो वो आ जाएगा। तो एक तरीके से फाइनल रिपोर्ट बना के आपने जो है वो बोर्ड को दे देनी है, एंड द टाइम पीरियड इज 1 month, एंड देन द बोर्ड टेक्स ओवर। उसके बाद बोर्ड जो है वो पूरी इंक्वायरी कंडक्ट करता है। हाँ जी, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ प्रोसीजर। मैं थोड़ी सी आपको प्रोविजंस के साथ रिलेशन में मार्क करवा देती हूँ दैट हाउ द प्रोसीजर गोज फॉरवर्ड, ठीक है। Yes, but there is a special procedure that needs to be followed, ठीक है, उसकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं, स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होनी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ओके, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, लेट्स सी, पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, FIR तो होती ही नहीं है, एंड देन वी हैव हीनस ऑफेंसेस, FIR हो सकती है, ठीक है, एंड इनकी जो बाद में फाइनल रिपोर्ट्स जाती हैं वो बोर्ड को ही जाती हैं। यहाँ पे देयर इज नो एप्रीहेंशन, ठीक है। आप उसके पेरेंट्स को टाइम बता सकते हैं दैट ये आपका फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग होगा, दैट द पर्सन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द बोर्ड। यहाँ पे देयर कैन बी एप्रीहेंशन, एंड जैसे ही आपने बोर्ड के आगे उसको प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको टाइम मिलता है कि ये जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है वो 1 महीने के अंदर फ्रॉम दैट डेट इट इज गोइंग टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट, एंड देन द बोर्ड टेक्स ओवर द इंक्वायरी। Okay, Kiran, I think I just told you. ठीक, now if you can see here, आपके शायद बेयर एक्ट्स में होंगे, we do have Juvenile Justice Care and Protection of Children Model Rules 2016, ठीक है आपके बेयर एक्ट्स में 2016, ठीक है। बस वहां से आप ये प्रोसीजर शुरू कर दो इनका। दिस इज चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर 3 है आपका, ठीक है। दिस इज प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सो इफ यू कैन सी, दिस इज रूल 8, रूल 8 मिल गया आपको, ठीक है, डन, ओके, लेट्स सी। So let's see this. I'm reading this. Pre-production action of police and other agencies. No FIR shall be registered except where a heinous offence is alleged to have been committed by the child, or when such offence, matlab heinous offence only, is alleged to have been committed jointly with adults. I think this is clear now. So in all the matters, the special juvenile police unit, और कौन-कौन से unit हो सकते हैं, child welfare police officers, कुछ भी जो भी available है, shall record the information regarding the offence alleged to have been committed by the child in the general daily diary, followed by a social background report, underline kar lena, of the child in form number 1 and circumstances under which the child was apprehended. So I think आपके बेयर एक्ट के अंदर forms भी होंगे rules के साथ attached. So just have a look at form number 1, which deals with social background report. Just have a look at it. ठीक है, देख लिया आपने। नाउ दिस इज द सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट। दिस इज हाउ बेसिकली आपको जो है ये पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। सो द फॉर्म इज एग्जैक्टली सेम जैसे हमने एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट किया था, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? लेट मी नो, ठीक है, ओके। एक बार देख लो फॉर्म नंबर 5, just have a look at it. Form number 5 काफी हद तक सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, but I want to tell you that these are different. हाँ जी, can you have a look at form number 5? मिल गया? Okay, this is order for SIR. This is social investigation report. ये कौन ऑर्डर करता है? This is being ordered by the Juvenile Justice Board and probation officer को हम ऑर्डर करते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ऑर्डर आता है for social investigation report. Done.
फॉर्म नंबर 6 पे आ जाओ. कैन यू सी फॉर्म नंबर 6? ये क्या है? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर CCL मिल गया फॉर्म नंबर 6. So this is different, which is being ordered by JJ board. ठीक है, ये देख सकते हैं आप. देखो कितना डिटेल है ये. इफ यू कैन सी यहाँ पे पॉइंट नंबर 21, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ द चाइल्ड? स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग यूज, गैम्बलिंग, बेगिंग, watching TV, playing indoor outdoor games, reading books, religious activities, drawing, painting, acting, singing and any other extra co-curricular whatever interest he has. ठीक है, पढ़ाई कितनी है इसकी, ये सारा. ठीक है, and if you can see here रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी. ठीक है, रिजल्ट पे आ जाओ आप, जहाँ पे आप देख सकते हैं, देखा आपने इमोशनल फैक्टर्स, फिजिकल इंटेलिजेंस, ये सब. ठीक है, आप देख लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट के साथ. SIR के अंदर लास्ट में कहीं नहीं लिखा है कि क्या उनको लगता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है या नहीं. Are you able to get the point? Social investigation report is a totally different thing. We really want to have the knowledge of that person. उसका past कैसा है, what kind of person he is. We are really going into the characteristics of that person. But if you can see the social background report, क्या social background report जो आपने form number 1 में देखा, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 19, whether the child is a victim of any offense. ठीक है, whether ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. ठीक, whether the child is used by any gangs or adults or groups of the child or the other has been used for drugs. ठीक है, what are the reasons for alleged offense such as parental neglect or overprotection, peer group influence, alleged role of the child in the offense. 24. ठीक है, no, just see here ना, this is something the police is trying to make a report before the board. वो अपना point justify कर रहे हैं ना, this is the information, that is why we have recorded the daily diary report and we think that this person has committed the offense. ठीक है, तो आप 24 देख सकते हैं, alleged role of the child in the offense. हम उस information का बता रहे हैं कि ये information हमें आई थी और उसके according जो है वो हम आपको बता रहे हैं to the board that whether the board has to proceed further with the proceedings या नहीं. ठीक है, I think this is clear to everyone. डन, कोई प्रॉब्लम? ये मैं अब सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट के अंदर पढ़ रही थी. कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 24, दिस इज गिवन अंडर फॉर्म नंबर 1. ये स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस यूनिट जो भी होता है वो भेजता है टू द बोर्ड that what is their take on the nature of this offense and how the board will have to proceed. Social investigation report के अंदर this is a direction which is issued by the Juvenile Justice Board and this is usually to the probation officer. This helps the board to take the action against and this also helps the board सेक्शन 18 के अंदर to decide कि किस तरीके का फाइनल ऑर्डर जो है वो पास होना चाहिए अगेंस्ट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? लेट मी नो. डन, ठीक है. एनीवन, कोई प्रॉब्लम और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं. चलो ठीक है, आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. सो वी आर बैक टू रूल नंबर 8. हम वापस आ रहे हैं रूल 8. ठीक है, सो वी आर डूइंग JJ मॉडल रूल्स 2016. ये सिर्फ आपकी थोड़ा सा नॉलेज के लिए है कि बाय चांस अगर आपको IPC के अंदर कोई कनेक्टेड क्वेश्चंस आ जाएं और जुवेनाइल साथ में हो पर्सन और उन्होंने हीनस ऑफेंस किया हो, सो जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ क्लैरिटी दैट व्हाट इज द प्रोसीजर बीइंग फॉलोड. ठीक है, ऑलराइट. रूल 8 हम कर रहे थे. प्रोवाइडेड दैट आई एम रीडिंग द प्रोवाइजो, दैट इज द सेकंड पैरा. Provided that the power to apprehend shall only be exercised with regard to the heinous offences unless it is in the best interest of the child. Apprehension petty and serious offences के अंदर नहीं होती है. This only happens in the case of heinous offence. ठीक. For all the other cases involving petty and serious offences and cases where apprehending the child is not necessary in the interest of the child, the police or the special juvenile police unit or the child welfare police officer shall forward the information regarding the nature of the offence alleged to be committed by the child along with his social background report
which they have prepared in form number 1 to the board. 2 months के अंदर prepare करनी होती है from the date of the information, and intimate the parents or the guardian of the child as to when the child is to be produced for hearing before the board. ठीक है, तो ये social background report and all सारा हम करके fill up, we are going to send this matter to the board and then final report हमारी यही होती है and then the board takes over. और उसके पेरेंट्स को बता देंगे कि when you are supposed to produce the child before the board. Next is when a child alleged to be in conflict with law is apprehended by the police officer. अगर heinous offences के केस के अंदर उसको हमने arrest कर लिया है तो then the police officer concerned shall place the child under the charge of the special juvenile police unit or the child welfare police officer who shall immediately inform. तो क्या करेंगे, जैसे ही हमने उसको arrest कर लिया, apprehend कर लिया, तो we are going to inform the parents, the guardian of the child, that the child has been apprehended along with the dates. तो साथ में हम क्या बताएंगे कि हमने उसको apprehend तो कर लिया, but this date you are supposed to bear before the board. वहाँ पे आप अपने बच्चे को जो है वो आके मिल सकते हैं, because now we are going to produce him before the board. Next is all right, the probation officer concerned that the child has been okay. तो साथ में ही देखें यहाँ पे आप please underline कर, this is important. तो जैसे ही उसको apprehend कर लिया तो special juvenile police unit, अगर आप point number 2 देखें तो वो साथ में प्रोबेशन ऑफिसर को भी इन्फॉर्म कर देती है. प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, जिसने SIR बनानी होती है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. तो वो साथ में ही उसको इन्फॉर्म कर देते हैं that the child has been apprehended so as to enable to obtain information regarding the social background of the child and other material circumstances likely to be assistance to the board for conducting the inquiry. Is this clear? साथ में उसी को ही जो है वो हमने एक तरीके से इंटीमेट कर दिया कि वो अपना काम करना शुरू कर दे, बिकॉज SIR तो चाहिए ही होगी. और हमने इन्फॉर्म करना है टू द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और द केस वर्कर टू कंपनी द स्पेशल juvenile police unit or the child welfare police officer who produces the child before the board within the 24 hours. तो साथ में आपका child welfare officer भी जाता है. Next is the police officer apprehending a child alleged to be in conflict with law shall not send the child. तो पुलिस लॉकअप में हमने उसको वैसे भी नहीं भेजना है. You're not supposed to send the child to a police lockup and not delay the child being transferred to the child welfare police officer from the nearest police station. The police officer under 12(2) of the Act send the person apprehended to an observation home only for such period till he is produced before the board. तो बाई चांस अगर टाइम पीरियड है हमारे पास, लॉकअप में उसको रख नहीं सकते, तो फिर कहाँ भेज सकते हैं, ऑब्जर्वेशन होम में, till the time he is produced before the board. Office that is within 24 hours of his being apprehended and appropriate orders are obtained as per rule 9 of these rules. जब तक बोर्ड ऑर्डर नहीं पास कर देता कि आप इसको ऑब्जर्वेशन होम के अंदर ही रखो, तब तक आप भी फॉर द टाइम बिंग उसको ऑब्जर्वेशन होम में रख सकते हैं. नो हैंडकफ्स, कोई भी किसी भी तरीके से कोर्सिव मेजर जो है वो हमने यूज नहीं करना है, फोर्स यूज नहीं करनी है. नो हैंडकफ्स, चेन और अदरवाइज fetter the child and shall not use any coercion or force on the child. Next is, these are just the safeguards that you have to follow. Inform the child promptly and directly of the charges leveled against him through his parents, guardian, and if a FIR is registered, give a copy of the same available to the child, with a copy of the police report shall be given to the parent or the guardian. Next is, you are supposed to provide the medical assistance. Medical assistance, provide appropriate medical assistance, assistance of interpreter, special educator, or any other assistance which the child may require as the case may be. Next is, there should not be any compulsion to confess. आपकी तरफ से कोई भी compulsion नहीं आनी चाहिए कि वो अपनी guilt को confess करे. So, not compel the child to confess his guilt, and he shall be interviewed only at the special juvenile police unit or at the child-friendly premises. या पुलिस स्टेशन का कोई भी कोना आपको ऐसा लग रहा है कि वो चाइल्ड फ्रेंडली है, तो वहाँ पे जाके उसको आप क्वेश्चनिंग करेंगे, इंटरव्यू करेंगे. ठीक है, तो वो जैसे वो माहौल नहीं बनाना कि एक चेयर पड़ी हुई है, देयर इज ओनली वन लैम्प, ठीक है, सर के ऊपर एक ही लैम्प है एंड देयर इज नो वन इन द रूम, सारा रूम एम्प्टी है, तो वो वैसे ही घबरा जाए. वैसा नहीं, चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर भी हो सकता है पुलिस स्टेशन का, जहाँ पे जाके आप उसको क्वेश्चनिंग करने वाले, which does not give the feel, of a police station or being under the custodial interrogation. Right. So the parent or the guardian present during the interview of the child by the police. Parents वहाँ पे हो सकते हैं, guardian वहाँ पे हो सकता है. ठीक है. Next is, not to ask the child to sign any statement. So you're not supposed to ask the child to sign any statements.
And then we are supposed to inform to the district legal services authorities for providing free legal aid to the child. बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, पुलिस plain clothes के अंदर they're not supposed to be in the uniform. Then child welfare police officers, they're not supposed to be in the uniform, they have to be in the plain clothes. Idea हमारा यही है that we really don't want to traumatize the child कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, even though he has committed an offense, because one of the objective of the JJ Act is that rehabilitation करना भी जरूरी है. No doubt we are trying to book the offenders, but साथ में rehabilitation is one of the important concern. Okay, हाँ जी, I hope this is clear इतना. तो लास्ट फिफ्थ पॉइंट एक पढ़ लेते हैं. I mean 8 and 9 काफी हद तक आपको प्रोसीजर जो है वो क्लैरिटी दे देंगे. ठीक है, 5 पढ़ते हैं पहले. The child welfare police officer shall record the social background of the child and circumstances apprehending in every case of alleged involvement of the child in an offence in form number 1, which shall be forwarded to the board forthwith. For gathering the best available information, it shall be necessary upon the special juvenile police unit or this child welfare police officer to contact the parent or the guardian. हाँ जी, Jyotika. Free legal aid, is it a compulsory? Yes, definitely. If they have enough sources, if they have arranged for their lawyer, तो फिर तो चलो जरूरी नहीं है. But अगर कोई ऐसा है that the person is not able to arrange for any lawyer, तो फिर free legal aid देना तो बहुत ज़्यादा compulsory. So basically, this is keeping in view one of the important tenets of law. Everyone should be given an opportunity to be heard, right? And accused के केस में हम कहते हैं कि उसको हर एक मौका देना चाहिए so that he is in a position to defend himself. तो fair trial का concept होता है ये, that हर एक को representation मिलनी चाहिए, हर एक की सुनवाई होनी चाहिए. And I think fair trial is one of the things which has to permeate in every kind of a trial. नहीं तो आपका जो trial है वो prejudice हो सकता है and सारी की सारी proceedings set aside हो सकती है. ठीक है, right. Why police is not releasing him on bail as per 12, like in general cases except wise or yeah, the police might release. ये यहाँ पे actually what happens here is because you are trying to produce the person before the board, right, within 24 hours, and he has committed an heinous offence. ठीक है, अगर पुलिस ने नहीं किया है, पुलिस कर सकती है, there is no doubt about it, because there is no differentiation under section 12. ठीक है, वो उसी टाइम उसको रिलीज भी कर सकते हैं. But the point is that if you have not released और आपको लगता है कि इसको apprehend करना जरूरी था, then you will have to produce it before 24, within the period of 24 hours before the board, and then the board takes over. Then the board may decide. ठीक है. Why might it should be right? Except in the cases of proviso, they can't, right? But yes, otherwise they will have to. Because there is no difference between the bailable or the non-bailable offences in case it comes to the juvenile. कोई difference है ही नहीं है, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है. ठीक है? Okay. So let's read 7 point. This is important. I'm skipping 6, वो उतना important नहीं है. When the child is released in a case where apprehending of the child is not warranted, ठीक है, child को release कर दिया, the parents of the guardian or the fit person in whose custody of the child alleged to be in conflict with law is placed in the best interest of the child shall furnish an undertaking on a non-judicial paper in form number 2 to ensure their presence on the dates during the inquiry or proceedings before the board. So जहाँ पे हम बच्चे को छोड़ रहे हैं, we are not keeping that person, तो वहाँ पे बस हम क्या करेंगे, एक तरीके से उसके पेरेंट्स या गार्जियन से जो है वो फॉर्म नंबर 2 के अंदर एक अंडरटेकिंग लेंगे कि जब जब आपको बुलाया जाएगा, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप इस बच्चे को जो है वो अवेलेबल करें बिफोर द बोर्ड. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू डू राइट, बिल्कुल लाइक अ बेल बॉन्ड विद द श्योरिटी. सो जस्ट हैव अ लुक एट फॉर्म नंबर 2. आपको फॉर्म के साथ काफ़ी हद तक क्लैरिटीज मिल जाती हैं दैट ओके दिस इज समथिंग दैट इज सपोज्ड टू बी डन. So let's have a look at form number 2. Undertaking by the parent or the guardian or fit facility, fit person given interim custody pending inquiry. So एक तरीके से आप उसको कहीं पे ऑब्जर्वेशन होम में कहीं पे नहीं रख रहे हैं, बट आप उसको पेरेंट या गार्जियन की कस्टडी के अंदर रख सकते हैं. ठीक है, एंड यू कैन सी हियर
that this is the form जहाँ पे पेरेंट्स या एक तरीके से गार्जियन जो है they take an undertaking कि जब भी बुलाया जाएगा we will make this person available. Okay, I hope this is clear to everyone. Let me. So I'm not reading 8 and 9. That's pretty simple. उसमें कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको. That's not the procedure. Just a general layout है. You can just skip it out. And now let's quickly see rule 9. बस इतना ही आपके लिए important है. Rule 9 के अंदर now you are actually producing. FIR decide कर लिया होनी है या नहीं होनी, apprehension होनी है या नहीं होनी, वो सब हमने decide कर लिया. And now अब हम उसको produce कर रहे हैं before the board. So this is rule number 9. So when the child alleged to be in conflict with law is apprehended, अगर हमने उसको apprehend किया है, he shall be produced before the board within the span of 24 hours of his being apprehended, along with the report explaining the reasons for the child being apprehended by the police. साथ में report आती है कि हमने इसको क्यों apprehend किया है. On production of the child before the board may pass orders as deemed necessary, including sending the child to an observation home or a place of safety or fit facility or a fit person. If you're not releasing the child on bail, then definitely you're going to send the child to an observation home, because observation home के अंदर pending inquiry के अंदर हम उसको send करते हैं. ठीक है. Next is where the child produced before the board is covered under 83 of the Act. This is something that you can skip it out. Not that important. ठीक है. I'm starting off with rule 10. This is post production processes by the board. This is important. थोड़ा सा ये देख लेते हैं. On production of the child before the board, the report containing the social background of the child, circumstances of apprehending the child, and the offence alleged to have been committed by the child as provided by the officers, individuals, agencies producing the child shall be reviewed by the board, and the board may pass such order in relation to the child as it deems fit, including orders under 17 and 18 of the Act namely. So I think आपको 17 and 18 पता है क्या है. 17, after looking out at all the information that you have got from the police, अगर बोर्ड को लगता है that the person has not committed an offence, तो उसको छोड़ सकते हैं, उसके अगेंस्ट सारी proceedings ड्रॉप हो सकती हैं. Yes, छोड़ दो बस उसको, या हम CWC के पास भेज सकते हैं. 18 के अंदर आपको पता है क्या क्या ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, राइट? ओके, तो क्या करेगा बोर्ड? डिस्पोज ऑफ द केस. ठीक है. If on the consideration of the documents and records submitted at the time of his first appearance, फर्स्ट अपेयरेंस के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो भी रिकॉर्ड आया है, ठीक है, फर्स्ट अपेयरेंस के अंदर आपके रिकॉर्ड आएंगे, जैसे सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट आई है आपकी. हिज बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अपीयर्स टू बी अनफाउंडेड, बोर्ड को नहीं लग रहा कि इसके अगेंस्ट कोई केस बनता है, ठीक है. और वेयर द चाइल्ड इज एलिजिड टू बी इन्वॉल्व इन पेटी ऑफेंसेस, यहाँ आपको लगता है कि चाइल्ड जो है उसने सिर्फ एक पेटी ऑफेंस किया है, ठीक है. Referring the child to the committee where it appears to the board that the child is in need of care and protection. यहाँ हम CWC के पास भी भेज सकते हैं if he needs care and protection. या उसको हम रिलीज कर सकते हैं in the supervision or the custody of the fit persons or fit institutions or probation officers. रिलीज करती है and then he is being put under the watch or the supervision of the probation officers. या हम उसको डायरेक्ट कर दिया that the child to be kept in child care institution as appropriate pending the inquiry as per the form. So basically this is what you can do. Next is, in all the cases of release pending inquiry, the board shall notify the next date of hearing not later than 15 days of the first summary inquiry, and also seek social investigation report from the probation officer, and in the case of probation officer is not available, the child welfare officer or social worker concerned through an order in form number 5. So basically not later than, yes, फर्स्ट समरी इंक्वायरी जिस दिन आपने उसको पहली बार प्रोड्यूस किया है, जो नेक्स्ट डेट होगी वो 15 दिन के अंदर अंदर स्केड्यूल हो जानी चाहिए. एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो आई जस्ट हैव टू डू दिस सेक्शन विद यू, एंड नेक्स्ट सेक्शन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, सॉरी दिस सेक्शन ओनली आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थोड़ा सा 5-10 मिनट के अंदर आई विल जस्ट वाइंड इट अप, बस यही इंपॉर्टेंट है, सॉरी रूल, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद DV एक्ट. ठीक है. सो आई विल क्विकली सी यू इन हाफ एन आवर. Bye bye. See you.